So to start this video off, let's just have a look at the specifications of this PC over here. लेकिन इसके भी पहले अगर आपने वीडियो के स्टार्टिंग में जो 2.5 मिनट का सीक्वेंस था, अगर आपने उसको बिना स्किप करे पूरा का पूरा देखा है तो आई रियली वांट टू थैंक यू, क्योंकि इट डिड टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू क्रिएट दैट सीक्वेंस. इसके अलावा इफ यू कैन लाइक द वीडियो दैट विल बी अगेन हाईली अप्रिशिएटेड. Let's now get back to the video. Let's have a look at the specifications of this PC over here. And if you can see something over there, here's Johnny. Here's Johnny. Specification wise यहाँ पर we are using the flagship Intel Core i9, the 12900K from Intel. तो यहाँ पर of course 16 cores हैं and that is absolutely a behemoth of a i9 processor. For the motherboard I have used the Asus Prime Z690A. ये एक proper Z690 का chipset है, यानी कि flagship chipset है. It also supports DDR5. I have made a proper video on this one in case you want to check it out. I will put the link of this motherboard in the description box below. अब DDR5 compatible motherboard था तो I of course had to go with the DDR5 की RAM stick and यहाँ पर I'm using the Astra की RAM stick. This is a 16+16 यानी कि 32 GB की RAM kit. Of course ये RGB है and the frequency in this one is 50 to 100 MHz, which is just great. क्योंकि i9 का इस्तेमाल कर रहे थे, of course we had to have a look at something of a cooler जो कि इस i9 को properly cool कर पाए. तो for that we have used the Ryujin 360mm का AIO liquid cooler from Asus and इस वाले liquid cooler के अंदर जो इसका main water block है, मतलब अगर आप बताना भी चाहो कि इसके अंदर नॉक्टुआ के फैंस लगे हुए हैं तो भी यू कैन नॉट टॉक अबाउट दिस, क्योंकि इसमें स्क्रीन लगी हुई है तो आप उसको देख के ही mesmerized. With that we have used an RTX 3070 from Asus. This one is the tough edition का RTX 3070 जो कि हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं. It's over here. With that we have also used a Corsair का power supply unit, that is the RM850. ये 850 watt का completely modular and of course 80+ gold certified, one of the best power supply unit in the market है right now. Although in case you want to use 750 wattage of PSU, you can surely do that. With this RTX 3070 and i9, I don't think कि 750 watt से ज़्यादा की आपको requirement होगी. But it's okay, we use an 850 and I think we are fine with that. इसके अलावा I have also used the Kingston Fury Renegade PCIe Gen 4 की solid state drive, and क्योंकि ये 2 TB की थी इसलिए मैंने अलग से कोई और solid state drive लगाई ही नहीं, बस इसमें यही लगी है और I think ये बहुत enough है for this initial build. I think it's fine. And last but not the least, I think I should put the credit where it is due. जो chassis हमने यहाँ पे इस्तेमाल करी है, that is the Fractal Design Meshify 2, one of the most easy to build in computer case right now in the Indian market. बहुत ही अच्छी chassis है. इसका proper video मैंने upload किया अपने चैनल के ऊपर. In case you want to check it out, just check out the link in description, or I'm gonna put the review of this chassis in the I button over here, so you can just check this thing out. Specifications check करने के बाद अब बारी आती है to have a look at the overall performance benchmarks of this PC, यानी कि i9 plus 3070. लेकिन I personally feel like कि बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि सेम टॉपिक को कवर करते हैं, इसलिए when I for the first time received this 12th generation का i9 at my place, I was sure कि I have to do a different approach in this video. तो उस डिफरेंट अप्रोच के लिए आई बेसिकली जस्ट बॉट माई सेल्फ अ स्मार्ट प्लग. ये वाला स्मार्ट प्लग इज फ्रॉम विप्रो एंड इसके अंदर आई कैन जस्ट मॉनिटर द पावर कंजम्पशन ऑफ वट एवर द डिवाइस कनेक्टेड टू दिस स्मार्ट प्लग. तो मैं करने ये वाला हूँ अभी हाल कि आई एम गोना बी कनेक्टिंग दिस पीसी टू दिस स्मार्ट प्लग एंड विल बी मॉनिटरिंग कि जब ये वाला कंप्यूटर यानी कि i9 plus 3070 रहता है कंप्लीट आइडल पे, यानी कि जब हम माउस भी नहीं लाते हैं ना तो उस टाइम पे कितना पावर कंज्यूम करता है, जब हम एक सिंगल यूट्यूब वीडियो प्ले करते हैं तो कितना पावर कंज्यूम करता है, एंड ऑल्सो वाइल प्लेइंग अ वीडियो गेम लाइक GTA 5 या Forza Horizon 5 तो उस टाइम पे पावर कितना कंज्यूम करता है ये वाला पीसी. आई जेन्युइनली वांट टू टेस्ट दिस थिंग आउट, सो वी शैल हैव अ लुक एट दैट in a split of a second because I'll be gone and I'll bring you all the results right away. Let's do that. तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे टेस्ट किया वो था एकदम complete idle condition पे how much power will this consume, और उसका result is on the screen right now. 62.5 or somewhere around below 65 wattage is the power consumption when the PC is at idle. Now to have a look at YouTube, तो यहाँ पर 2 YouTube के टैब ओपन है लेकिन वहाँ पे कुछ चल नहीं रहा है, सिर्फ इस वाले टैब के ऊपर 1080 पिक्सल के ऊपर at 60 FPS का फुटेज चल रहा है. एंड while this is happening we're getting the power reading of around 75 watt के नीचे, if you can see it over here. Okay, so that is around 75 watt when we are playing a YouTube video, and this video is of course 1080p at 60 FPS. Let's now jump at 4K का video. Let's have a look at that. Now that is 4K 60 FPS and we are getting the reading of around well below 85 FPS. अरे क्या बोल रहा हूँ, 85 watts. So if you play 4K at 60 FPS, you'll be seeing the wattage consumption of around below 85 watts. So that is over here. Yep.
अब इसके पहले कि आई टेल यू अबाउट द इन गेम पावर कंजम्पशन ऑफ द पीसी, लेट्स हैव अ लुक एट अ फ्यू गेम प्लेस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद साइबरपंक 2077। अब यहाँ पे यू कैन सी दैट वी आर गेटिंग द एवरेज ऑफ अराउंड 33 FPS एंड जो 1% लोज है यहाँ पर वो है 30 FPS एंड वी आर गेटिंग दीस फ्रेम रेट्स एट द रेजोल्यूशन ऑफ 4K। ये नेटिव 4K है, यहाँ पे DLSS ऑन नहीं है एंड जो इन गेम सेटिंग्स है यहाँ पे वो है एट द हाई प्रीसेट, तो इसलिए यहाँ पे वी आर गेटिंग एट अराउंड 33 FPS के आसपास का फ्रेम रेट, विच इज अगेन हाईली एक्सपेक्टेड फ्रॉम साइबरपंक क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही डिमांडिंग टाइटल है। नेक्स्ट अप इज ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 और यहाँ पर हमें मिल रहे हैं 106 FPS का एवरेज एंड दिस इज रनिंग एट द रेजोल्यूशन ऑफ 4K। द गेम इज कंप्लीटली मैक्स्ड आउट एक्सेप्ट फॉर द एडवांस सेटिंग्स, बाकी सब कुछ एकदम मैक्स पे सेट है यहाँ पर एंड वी आर गेटिंग प्रिटी स्टेबल 100 FPS के ऊपर। अगर 1% लॉस के बारे में बात करें तो वी आर गेटिंग अराउंड 96 FPS। अगेन टू मेंशन दिस इज रनिंग एट 4K रेजोल्यूशन एंड एट कंप्लीटली मैक्स्ड आउट सेटिंग्स। अगला गेम है फोर्जा होराइजन 5 जहां पे स्टार्टिंग के सारे सीक्वेंसेस का ओवरऑल एवरेज फ्रेम रेट था 85 FPS का एंड द 1% लोज वर एट 71 FPS। अगेन ये वाला गेम भी कंप्लीटली मैक्स्ड आउट है एट द रेजोल्यूशन ऑफ 4K एंड ओवरऑल फोर्जा होराइजन 5 वाज एब्सोल्युटली अ स्मूथ गेम प्ले एक्सपीरियंस। अब बात करें पावर कंजप्शन वाइल गेमिंग के बारे में तो फोर्जा होराइजन 5 में इट कंज्यूम्ड बिटवीन 350 एंड 360 वॉटेज। GTA 5 में इट वाज ऑलमोस्ट ऑलवेज बिलो 400 वॉट्स यानी कि बिटवीन 380 एंड 390 वॉट्स एंड साइबरपंक के अंदर इट वाज ऑलवेज अबव 400 वॉट्स, दैट इज मोस्टली बिटवीन 410 वॉट एंड 424 वॉट्स। जब ये वीडियो शुरू हुआ था तो आई वाज सो कंसर्न अबाउट कि मैं तुम्हें ऐसा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दूंगा so that you can have a little bit of value from my video, and that is the reason why I bought that smart plug so that we could measure the amount of electricity that this thing is consuming. I mean to say this i9 plus 3070। अगर हम यहीं पे बात करें अबाउट द गेमिंग सिनेरियो तो गेमिंग के अंदर ग्राफिक कार्ड इज गोइंग एट द 100% का यूसेज, इसलिए जितना पावर कंज्यूम होता है उसमें मोस्टली जो पावर कंज्यूम हो रहा होता है वो ग्राफिक कार्ड ही कर रहा होता है। तो इसलिए अभी ये काम करते हैं, सीधे फोकस करते हैं ऑन दी आइडल पावर कंजम्पशन के ऊपर। यहाँ पर मैंने थोड़ी देर पहले यह करा कि मैंने टेस्ट करा कि मेरे पास जो दूसरा कंप्यूटर सिस्टम है यहाँ पर रखा हुआ पीछे की तरफ में जिसके अंदर Ryzen 3700X है और 970 है। आई टेस्टेड इट्स आइडल कंडीशन एंड पावर कंजम्पशन एंड आई वॉज ब्लोन अवे कि जो मेरा खुद का सिस्टम है वो 106 वॉट का पावर कंज्यूम करता है जस्ट ऑन आइडल इटसेल्फ। तो कहाँ मेरा सिस्टम कंज्यूम कर रहा है 106 वॉट और कहाँ पर ये कंज्यूम कर रहा है सिर्फ और सिर्फ 65 वॉट। तो आई थॉट कि एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट गो इवन फर्दर एंड चेकआउट कि दूसरा कंप्यूटर कितना कंज्यूम करता है पावर। तो आई हैव गॉट इंटेल कोर i3 7100 का सिस्टम एंड मैंने उसको चेक करा, उस सिस्टम के अंदर कोई ग्राफिक कार्ड नहीं है एंड दैट पीसी वाज कंज्यूमिंग एट एग्जैक्ट 40 वॉट ऑफ पावर कंजम्पशन एट आइडल। तो आई रियलाइज कि इंटेल ने पहले 40 वॉट कंज्यूम किया एट डुअल कोर एंड एट 4 थ्रेड्स, वो 7 जनरेशन था, लेकिन 12 जनरेशन के अंदर दे आर एक्चुअली कंज्यूमिंग 3070 को मिलाने के बाद भी दे आर कंज्यूमिंग 65 वॉट। तो कहाँ 2 कोर पे 40 वॉट और कहाँ 16 कोर पे और 24 थ्रेड के ऊपर और 3070 मिलाने के बाद 65 वॉट। आई डोंट नो हाउ दिस पी कोर एंड ई कोर वर्क्स, बट द ट्रूथ इज कि जो एफिशिएंसी कोर्स हैं दे डू एक्चुअली वर्क आउट फॉर इंटेल का 12th जनरेशन। So that was the overall video. When I was planning to do the outro of this video, I thought कि अगर i9 इतना बढ़िया है तो फिर i7 जो कि एक्चुअल में मेन स्ट्रीम प्रोसेसर होता है वो कितना ज़्यादा बढ़िया होगा while पावर कंजम्पशन के बेसिस के अंदर। We'll have a look at that in the future upcoming किसी वीडियो के अंदर। अभी के लिए this will be it. This actually took a lot of time to create this video, so I'm gonna wind it up over here and I'm gonna meet you on the next one. Take care and peace out. Let me know how was this video and I'm gonna leave you with the overall montage and video of this PC because I guess I have not shown you that. So वो खत्म करते हैं and yeah, take care, get hydrated and peace out. Peace.